Hello students, this is sum number 8 of your sheets. The state government granted license to Sweet Sugar Limited to manufacture and sell sugar with a stipulation means condition that 40% of the output should be sold to the state government at a control price of 3000 per ton and the balance output can be sold in the open market at any price. Following details of Sweet Sugar Limited for the year ended 31st March 1999 is given. During the year, 3,600 tons of sugar cane was consumed at the rate 1,000 per ton. Now sugar बनाने के लिए sugar cane is the raw material, तो उसको अंडरलाइन कर देंगे, उधर लिख देंगे डायरेक्ट मटेरियल. Direct labor amounted to rupees 825 per ton of sugar produced, so direct wages. The details of other expenses are given below. तो बाकी सारे खर्चे दिए हुए हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा क्या है. थोड़े अमाउंट्स में थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं, पॉइंट पॉइंट करके दिया है, तो जरा मैं टेक्स्ट बुक से एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, फिर अमाउंट चेंज कर देंगे तुम लोग. चलो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डी, टेलीफोन एक्सपेंसेस ओ, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस कंप्यूटर परचेज, एनी असेट परचेज इज चोकड़ी, फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड, machinery purchase, any asset purchase is chokdi, machinery repairs is factory overhead, commission on sale is SO selling overhead, factory salary is factory overhead, carriage outward is selling overhead, packing expense is selling overhead, bank interest is chokdi क्योंकि फाइनेंशियल है, factory electricity is factory, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड, कोल कंज्यूम, कोल कहां पे मिलेगा, लगेगा फैक्ट्री में लगेगा, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री सॉरी मशीनरी इज फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इज ऑफिस, डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन इज सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस सैलरी इज ऑफिस ओवरहेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज ऑफिस ओवरहेड. ओके, ड्यूरिंग द ईयर 2400 टन्स ऑफ शुगर वाज प्रोड्यूस्ड, सो अंडरलाइन कर देना, यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, 2400 इज यूनिट प्रोड्यूस. ओके, आगे, the company's profit target for fixing an open market selling price on the basis of cost sheet is 10% of average capital. मतलब ये प्रॉफिट दिया हुआ है. Prepare cost sheet of various components of total cost per unit suggest selling price to be sold in the open market. Okay, सब नॉर्मल है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं. The state government granted license to Sweet Sugar Limited to manufacture and sell sugar with a stipulation that 40% of the output should be sold to the state government at a control price of rupees 3000 per ton. The balance output will be sold in the open market at any price. ये लास्ट में हम लोग देखेंगे. Following are the details available during the year. सबसे पहला raw material consumed मतलब डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है. During the year is 3600 tons of sugar cane was consumed at 1000 per ton. So I will write direct material. In direct material 3600 tons of sugar was consumed at कितना पर टन, 1000 पर टन, 1000. मेरे पास इधर जगह नहीं है, तुम लोग जरा समझ के लेना. तो इधर आएगा 3600,000, that means 36 lakhs. Unit produced in the question is given as 2400. बराबर ना, क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस दिया है 2400, बट ये यूनिट प्रोड्यूस ही दिया है, यूनिट सोल्ड भी नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं दिया है. दैट मींस 2400 यूनिट शुगर केन के प्रोड्यूस किया और उतना ही पूरा बेच दिया, तो यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड विल बी द सेम. सो 2400 36 लाख डिवाइड बाय 2400 करो कैलकुलेटर पे, तो आंसर आएगा 1500. होप यू अंडरस्टैंड. रेट पर यूनिट विल 1500. नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस के लिए दिया है 825 पर टन, तो कितने यूनिट प्रोड्यूस किया, 2400. 825 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 19,80,000. कैलकुलेटर पे करते जाओ, बस खाली कॉपी करना है, काम मत करो. डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो ना, पहला ही लाइन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,20,000. ऐड करेंगे 19 प्लस 24 60 lakhs divided by 2400. So you will get 2500 as prime cost. यहाँ तक क्लियर है? So we got prime cost. Add factory overheads. Now in factory overheads, how many factory overheads are there? See this factory rent, coal coming 3 6. So चलो स्टार्ट करते हैं. अमाउंट बराबर से चेक करना, मैं टेक्स्ट बुक से लिख रहा हूँ अमाउंट सा. पहला factory rent is how much?
3,54,760. 3,54,760. Next is coal consumed. Coal consumed is 3,80,125. Next, factory salary. Factory salary is 2,19,588. Next is machine repairs. Machine repairs. Machine repairs is 98,847. Next is factory electricity. Factory electricity is 2,61,880. Next is machine depreciation. Machine depreciation is 249,600. Total expenses of factory is 15,64,800. Okay, add, you will get 75,64,800. किससे डिवाइड करेंगे? 2,400 से। 2,400 से फैक्ट्री का निकालो। ये सब तुम लोग निकाल देना बॉस, सब निकाल देना, सब मिल जाएगा तुमको, कैलकुलेटर पे आएगा, बराबर है? ओके, एड ऑफिस ओवरहेड। अच्छा, ये सब निकालने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर तुम्हारे पास टाइम है तो सब निकालो, नहीं तो फिर ये टोटल का फैक्ट्री ओवरहेड का निकालेगा तो भी बस है। आगे चलते हैं। ऑफिस ओवरहेड कितने हैं? 1 2 3 4 है। चलो, पहला सैलरी। सैलरी इज 1,89,325। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,13,000। नेक्स्ट, टेलीफोन। टेलीफोन इज 3,52,695. Next is depreciation on computer. Depreciation on computer is 2,04,180. Total is 8,59,200. Okay, divide by 2,400 करो, you will get 358. So चलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा टोटल। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? 75 लाख प्लस 8,59,200। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यू विल गेट एज 84,24,000। 84,24,000 डिवाइड बाय 2,400. So your cost of production will be 3,510. 3,510. There is no opening stock, no closing stock. So the cost of goods sold also will remain same. 3,510. That is 84,24,000. Hope this is clear. Now add sales overhead. Sales overhead में 1 2 3 4 5 है। पहला कमीशन, दूसरा कैरेज आउटवर्ड, तीसरा पैकिंग एक्सपेंस, फिर डिलीवरी वैन एक्सपेंस, और एक है डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। चलो, टेक टोटल कमीशन 3,37,650। नंबर्स बोलता हूं वैसे लिखते जाओ। कैरेज आउटवर्ड 1,54,090। पैकिंग एक्सपेंस 1,94,450। डिलीवरी वैन एक्सपेंस 1,06,550। 850। Depreciation on delivery van 1,57,360. 1,57,360. So total will be 9,50,400. Okay. And you will get cost of sales. Cost of sale will be 93,74,400. Okay. And here you will get 2,400 unit. 3,906 is the answer. Cost of sale. यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक तो इजी है, मतलब हमने हमेशा किया ही है ना, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है। अब तुम लोग बोलेंगे सर नया क्या सीखना है? क्वेश्चन में नया ये सीखना है कि इन दिस क्वेश्चन आवर स्वीट शुगर लिमिटेड is selling 2,400. Now he is producing 2,400 units at the rate 3,906. अरे बराबर ना, और उसको टोटल 93 लाख रुपीस का खर्चा होता है।
गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 40% माल जो है ना तुमको स्टेट गवर्नमेंट को ही बेचना है ऑन अ स्टिपुलेटेड प्राइस ऑफ 3000 पर टन। मतलब तुम बनाओ 3900 में, 4000 में बनाओ, कितने में भी बनाओ, दैट डजंट मैटर। क्वेश्चन में बोला गया है 2400 में से 40% माल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी बेचना ही है, उसको माइनस कर दो। तो लेस सोल्ड टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को बेचना है। कितना माल बेचना है? 40% बेचना है। 40%, 2400 का 40% विल बी 960 यूनिट्स बेचना है। कितने में बेचना है? 3000 रुपए बेचना है। पढ़ लू क्या ऊपर एक बार, फिर से एक बार ऊपर पढ़ लेता हूं, देखो। The state government granted license to Sweet Sugar Limited to manufacture and sell sugar with the stipulation that 40% of it should be sold to the state government compulsorily at a controlled price of 3000 per ton। मतलब 40% माल 2400 में से स्टेट गवर्नमेंट को बेचना ही है। तो 960 into 3000 will be, तुम्हारे को ये कैलकुलेटर पे आएगा 28,08,000। 28,08,000 मतलब टोटल खर्चा हो गया उनको 93 लाख का, लेकिन 93 लाख के खर्चे में से इतना पैसा उनको आ जाएगा, तो बचेगा क्या? बैलेंस क्या बचेगा इनके पास? बैलेंस क्या बचेगा? बैलेंस बचेगा 2400 माइनस 960 विल बी 1440। बैलेंस बचेगा, माइनस करेंगे तो आएगा 64,94,400। चेक कर लेना, 64,94,400 बैलेंस बचेगा। नाउ ये बैलेंस जो है, ये बैलेंस अब कितने यूनिट का कॉस्ट है? 1440 यूनिट्स का कॉस्ट है। मतलब टोटल खर्चा 93,74,400 हुआ, लेकिन उसमें से 28 लाख तो आ गया ना, तो बचा कितना? टोटल खर्चा कितना बचा? 69 लाख 94,400। 94,400 मतलब 69,94,400 इतना खर्चा हमने करके रखा है। कितने यूनिट्स के लिए करके रखा है? 1440 के लिए करके रखा है। अब ये लोग बोलते हैं ये जो बैलेंस यूनिट है ना, आप लोग कितने में भी बेचो चलेगा। तो एड प्रॉफिट सेल्स। अब ये बैलेंस यूनिट्स कितने में बेच सकते हैं? 1440 बराबर ना, कितने में भी बेच सकते हैं। अच्छा, कितने में बेचने का क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ना वहां पे दिया है, उसके नीचे देखो, लास्ट लाइन देखो। द कंपनीज प्रॉफिट टारगेट फॉर फिक्सिंग द ओपन मार्केट सेलिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शीट इज 10% ऑफ एवरेज कैपिटल ऑफ 1,42,56,000। मतलब कंपनी को 1,42,56,000 का 10% प्रॉफिट कमाने का है। 1,42,56,000 का 10% उनको प्रॉफिट कमाने का है। मतलब कंपनी को प्रॉफिट कितना कमाने का है? 14,25,600 का प्रॉफिट कमाने का है। अरे बराबर, तो ये ऐड कर देंगे तो टोटल सेल मिल जाएगा। सेल मिलेगा 79,20,000। 79,20,000। अरे बराबर, अब डिवाइड करेंगे 1440 से तो पता चलेगा कि ये लोग ने ओपन मार्केट में 5,500 पे बेचा। गवर्नमेंट को 3,000 में बेचा, लेकिन ओपन मार्केट में उन लोग ने कितने बेचा? 5,500 रुपया पर टन में बेचा। अरे समझ में आ रहा है कैसे? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ये गवर्नमेंट को बेचा तो इतना खर्चा हो गया। ये खर्चा होने के बाद इनको प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट चाहिए? 10% ऑफ द एवरेज पेड ऑफ कैपिटल। तो इसका 10% निकाला तो ये आ गया, इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया, डिवाइड किया तो सेलिंग प्राइस मिल गया, और डिवाइड करूंगा तो इनको प्रॉफिट मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? इजी समझ।